Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी सीधे ले सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं हमारे साथ और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे ये सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। यदि आप दिल्ली से बाहर से हमें फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड 011 भी आपको डायल करना होगा। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। We begin with the headlines. Domestic benchmark indices extend gains to second consecutive session. Sensex reclaims 80,000 level. Nifty ends above 24,200. Food inflation is expected to calm down in next few months on the likelihood of bumper Kharif harvest, says Finance Ministry in its monthly economic review. And crude oil prices slip. Brent crude trades at $75.03 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में हुई अच्छी खासी खरीदारी। सेंसेक्स एक बार फिर 80,000 के स्तर से ऊपर उठा। निफ्टी भी 24,200 के स्तर से ऊपर आकर हुआ बंद। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि शानदार खरीफ फसल की है संभावना। इससे अगले कुछ महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति की दर नीचे आने की है उम्मीद। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम घटे। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $75.03 प्रति बैरल के आसपास आया। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र यानी सोमवार को भी अच्छी खासी खरीदारी निवेशकों ने की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 993 अंक यानी 1.25% की बढ़त लेकर 80,110 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 1.32% यानी 315 अंक की बढ़त लेकर 24,222 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कहीं और बेहतर दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.61% की वृद्धि हुई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1.8% लाभ के साथ बंद हुआ। Domestic benchmark equity indices today extended gains to second consecutive session amid positive domestic cues. The 30-share BSE Sensex surged 993 points or 1.25% to close at 80,110, while the NSE Nifty 50 jumped 315 points or 1.32% to settle at 24,222. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index rose 1.61% and the small-cap index gained over 1.8%. In the Sensex index, 24 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Larsen & Toubro increased over 4%, SBI Bank rose over 3.5%, and Adani Ports gained over 2.5%.
Conversely, in the top laggards, JSW Steel shed 2.4%, Tech Mahindra, Asian Paints and Infosys lost over 0.7%, and Maruti fell nearly 0.5%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors ended with gains, and the top gainers, industrials, capital goods, as well as oil and gas advanced over 3.2%. Energy gained over 2.5% and realty added over 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,699 companies advanced and 1,350 declined, while 165 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 77 companies hit their 52-week high, while 48 hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 17 पैसे मजबूत हुआ, 84 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 106.95 पर चल रहा था। And we have our first caller for today's edition of Market Mantra. We have Rakesh calling in from Faridabad. Welcome to the Market Mantra program, Rakesh. What's your ask? What's your question? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार, हम आपको राकेश जी सुन रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि बैंक में अगर एफडी करते हैं, बैंक की एफडी अगर सीनियर सिटीजन को 0.8% इंटरेस्ट दे रही है और 1 साल में अगर गोल्ड खरीदते हैं मेटल के तौर पे, तो उसको रखने से क्या हमें किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि एफडी में तो हमें मालूम है कि हमें 0.8% मिल ही रहा है, गोल्ड में तो नहीं पता होता कि कितना उछाल लेगा या कितना घंटे में आ जाएगा। और मैं अगर शेयर मार्केट में जाना चाहता है तो इसके लिए आपने लास्ट वीक एक स्टेप बाय स्टेप आपने बताया था कि आपको ये चीजों को सीखना पड़ेगा, इसके लिए आप क्या राय देंगे? जी राकेश जी, आपने 3 चीजें एक साथ जोड़ करके पूछी हैं। पहली चीज कि बैंक एफडी में आपको एक सीनियर सिटीजन के तौर पर 7.75% का ब्याज मिल रहा है। बात सही है, लगभग इस समय इस तरह की ब्याज दरें मिल रही हैं। आगे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप लंबे समय के लिए, मान लीजिए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आप एफडी करा लेते हैं तो इस समय जो ऊंची ब्याज दरें चल रही हैं उसका फायदा आपको मिलेगा। रही बात गोल्ड की, तो वो पूरी तरह से बाजार पर निर्भर होता है। उसमें कभी रिटर्न आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। जैसे अगर आप रीसेंट पास्ट को देखें तो इसने बैंक एफडी की तुलना में काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया, लेकिन आपको कई ऐसे मौके देखने को मिलेंगे जब कई बार आम धारणा के विपरीत गोल्ड में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और कई बार आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी आपको किसी शॉर्ट पीरियड में देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर मार्केट रिस्क है, गोल्ड में भी है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए। और शेयर मार्केट में जब आप जाते हैं तो वो पूरी तरह से ही कह सकते हैं कि मार्केट रिस्क वहाँ पर रहता है। वहाँ पर आपको शेयरों को चुनना आना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि आपने पिछली चर्चा में सुना था क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो दरअसल काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखनी समझनी पड़ेंगी। अगर आप सीधे शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं, शेयरों को चुनने की कला आपको आनी चाहिए, शेयर बाजार कैसे काम करता है वो समझ में आना चाहिए। और अगर इतना समय नहीं है आपके पास तो आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से, और उसमें सबसे आसान होगा इंडेक्स फंड के रास्ते से, आप शेयर बाजार की तेजी का फायदा उठा सकते हैं। वो आपके लिए तुलनात्मक रूप से आसान और कम जोखिम वाला रास्ता होगा। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। हम एक आग्रह आप सबों से करना चाहेंगे कि जिस समय आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उस समय तो निश्चित रूप से अपने रेडियो की आवाज़ तेज रखिए, लेकिन जैसे ही आप जुड़ जाते हैं उसके बाद अपने ट्रांजिस्टर की आवाज़, रेडियो की आवाज़ धीमी कर लीजिए। बहरहाल हम आमंत्रित करने वाले हैं दिल्ली से योगेश शर्मा जी को। योगेश जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अपना सवाल पूछिए। जी, आप सभी को नमस्कार। और सर, मेरा सवाल इस प्रकार है कि मार्केट को एनालाइज करने के अक्सर 2 तरीके सुनने में आते हैं, जैसे कि टेक्निकल और फंडामेंटल। तो ये जो टेक्निकल है इसमें चार्ट का रोल हम बहुत देखते हैं, तो क्या इस तरह के चार्ट, इस तरह के पैटर्न्स, इस तरह के कैलकुलेशंस वाकई में ये प्रैक्टिकल होती हैं या ये सिर्फ तुक्के या फिर सिर्फ हमारा अनुमान मात्र होता है? जी योगेश जी, दोनों अपनी अपनी तरह की अलग विधाएं हैं शेयर बाजार को समझने की, और कुछ लोग दोनों को इंडिपेंडेंटली देखते हैं और कुछ लोग दोनों को मिला करके भी देखते हैं। कुछ लोग एक को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। कुछ लोग टेक्निकल्स को ये भी कहते हैं कि टेक्निकल्स उतना ही काम करते हैं जितना आप बादल को देख करके उसके अंदर आप कोई भी आकृति समझना चाहें, कि उसमें आपको गणेश जी दिख रहे हैं या आपको कुछ और नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्निकल्स को देख करके बाजार का बहुत सटीक अनुमान लगा सकने वाले विशेषज्ञ भी हमें दिखते हैं।
तो सबकी अपनी अपनी समझ होती है और उसमें किसी को चैलेंज करना ठीक नहीं होता है। आप किस विधा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है, ये आपके अपने मतलब समझने के स्तर पे और अपनी रुचि के आधार पे ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें काम करती हैं और दोनों को अगर मिला करके देखा जाए तो काफ़ी हद तक आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। Absolutely, and we have our next caller from Saharanpur. We have Vivek joining in. Vivek, welcome to Market Mantra. Please ask your question. मार्केट मंडा टीम को नमस्कार और एक्सपर्ट को भी नमस्कार। जी सर मेरा कुछ नहीं है, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और सर मैंने जो टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम मैंने सिलेक्ट की हुई है। अब तक सर मैं LIC प्रीमियम देता आया हूँ। LIC के मैंने एनरोटमेंट प्लान लिए हुए हैं, 814 एनरोटमेंट प्लान है, जिसका प्रीमियम 2 प्लान है और दोनों प्रीमियम का जो है 45,000 है। सर मैं क्या मुझे इसको बंद करके शेयर मार्केट में जाना चाहिए? मैं इसके बारे में आपसे जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में तो काफी समय से हूँ, मगर मैंने शेयर मार्केट में अब तक कोई स्टार्टिंग नहीं की है। तो चूंकि अब न्यू टैक्स डिजाइन में बेनिफिट खत्म हो गया है LIC का सेविंग का, तो आप इसके लिए मुझे थोड़ा गाइड करिए। विवेक जी, आपकी उम्र कितनी है? हमारा संपर्क उनसे छूट गया है जी। तो हम औसत उम्र मान के चर्चा अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये न्यू टैक्स रिजीम को देख रहे हैं कि वहाँ पर अब टैक्स इंसेंटिव्स उस तरह से नहीं है जैसी पुरानी टैक्स रिजीम में अभी भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पुरानी टैक्स रिजीम खत्म हो गई है, लेकिन NTR को, न्यू टैक्स रिजीम को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाती जा रही है और इसके चलते विवेक जी के मन में जो सवाल है वो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन विवेक जी, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप LIC या किसी भी बीमा प्रोडक्ट को लेते हैं तो आप सिर्फ टैक्स कितना बच रहा है ये ध्यान में रख करके नहीं लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। आप LIC या किसी भी दूसरी कंपनी का जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं वो आप इस हिसाब से खरीदते हैं कि आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की कितनी ज़रूरत है, और ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इसीलिए मैंने एक समझना चाहा था कि आपकी उम्र कितनी है। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ज़रूरत हो सकती है, उसके रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकते हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम 45,000 रुपये का भर रहे हैं 2 पॉलिसीज में, उसको कंटिन्यू करना या नहीं करना वो बिल्कुल इस बात पे निर्भर नहीं है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। वो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपनी एक ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग किसी अच्छे प्रोफेशनल से करवाइए जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और उसके हिसाब से आपको बताएं कि आपको इंश्योरेंस की और कितनी ज़रूरत है और न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहिए। ये इतना सरल मामला नहीं होगा। हमारे साथ मुंबई और कोलकाता दोनों ही स्थानों से श्रोता जुड़ चुके हैं। आप दोनों धैर्य के साथ बने रहिए। पहले कुछ खबरें, उसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। Absolutely. Moving on to our next story, India's economic outlook for the coming months is cautiously optimistic, with agriculture likely to benefit from favorable monsoon conditions, increased minimum support prices and adequate supply of inputs, the Finance Ministry said in a monthly economic review for October released today. The Finance Ministry said that going forward, inflation is expected to align with central bank targets, and the inflation trajectory will largely be influenced by the price movements in edible oils, tomato, onion and potato. The Finance Ministry added that the food inflation is expected to calm down in the next few months on the likelihood of a bumper Kharif harvest. The review highlighted that India's economy showed resilience in October with steady demand growth and strong manufacturing as well as service sector activity. On the employment front, the formal workforce is expanding with notable increases in manufacturing jobs and a strong inflow of youth into organized sectors, the Finance Ministry report added. आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं जगन्नाथ जी, स्वागत आपका। सवाल पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरा 2 सवाल है सर जी। मतलब एक शेयर मार्केट मतलब इन्वेस्टर प्रोफेशन के लिए मतलब कितना नॉलेज की जरूरत होता है, और मेरा दूसरा सवाल है कि हाउ टू एनालिसिस मतलब एनुअल रिपोर्ट कैसे एनालिसिस करें। ओके, धन्यवाद जी। इनका दूसरा सवाल मैं नहीं समझ पाया। पहले सवाल को ही बता दें, हम एक ही सवाल लें तो वो कम नहीं है, समय भी कम, खबरें भी काफी अधिक, बिल्कुल, तो हम एक सवाल से ही काम चला लेंगे। शेयर बाजार के लिए जगन्नाथ जी पूछ रहे हैं कितनी जानकारी ज़रूरी है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जानकारी पाने की कोई सीमा नहीं होती। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप क्लास 10 पास कर गए या क्लास 12 पास कर गए या आप ग्रेजुएट हो गए,
ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। जानकारी हर दिन पानी पड़ती है, हर दिन आपको नया अपडेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक चीज़ सीख ली है और वही चीज़ आपको 20 साल तक काम आती रहेगी। इसमें हर दिन आपको नई खबरों से अपडेट होना होता है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझना पड़ता है। सबसे पहले मार्केट के बेसिक्स समझने पड़ते हैं कि शेयर बाजार काम कैसे करता है, और उसमें अगर आप फंडामेंटल तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो किसी कंपनी को आंकने का सही तरीका क्या है वो आपको जानना होता है। And we have a next caller from Mumbai. We have Nikhil joining in. Nikhil, welcome to Market Mantra. Please ask your question. A very good evening to Market Mantra team. Very good evening. I have a currency related question. Generally around these times, which is December, you see a spike in the currencies like the USD and Euro versus INR. So my question would be specific versus Euro versus INR. Do you see a uptrend in the Euro prices against INR? Or this 1 month? Exactly, Nikhil ji, I won't like to speculate about how the prices will move up in 1 month, because currency market is always very volatile and always dependent on the news flow. But as of now, what the trends are, we see that the dollar index is on rise, US bond yield is on a higher trajectory. It is trying to stabilize, but it is still on elevated levels. So these factors, particularly because dollar prices will remain the key, even if we are trying to understand Euro versus INR pair, but dollar will remain the key. So how Euro fares against dollar and how INR fares against dollar, this will determine the pair of Euro versus INR. आइए चलें भिलाई, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रवि नारायण। रवि जी, स्वागत, आपका सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। स्वागत आपका। और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा सुझाव है। मैं जी। मार्केट मंत्रा का बहुत ही पुराना श्रोता हूँ जी। और एक सुझाव यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर विवेक जो है एक क्वेश्चन पूछ रहे थे जी, और एक्सपर्ट जो है उनसे उनका उम्र जानना चाह रहे थे, लेकिन ये जो सपोर्ट स्टाफ है वो जैसे ही अपना कनेक्शन लगता है, कॉल लगता है जी जी, और क्वेश्चन पूरा होता है तो तुरंत उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जी, एक सेकंड में भी जी, नहीं रुकते हैं। वो ठीक है क्योंकि बहुत लोग कॉल करते रहते हैं। हाँ हाँ, तो वेट जो मतलब इस लाइन को खाली रखना पड़ता होगा, वो मैं मानता हूँ। जी, या तो 3-4 लाइन और एक्स्ट्रा दे दिए जाएं, या फिर एक्सपर्ट को इतना एडिक्वेटली ब्रीफ किया जाए कि कम से कम 1 मिनट तो आप आदान प्रदान के लिए वेट करें। जो एक्सपर्ट यदि कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा समय दिया जाए। जी जी जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार रवि जी, आपने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। कुछ लाइनों की संख्या बढ़ाने के लिए हम अपने अधिकारियों के पास आपकी बात पहुंचा देंगे, और रहा कुछ देर तक छोड़े रखने का, तो हम उसकी भी थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल आपको यानी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। आपसे ही निवेदन कि आप इस तरह के जब सवाल पूछे तो थोड़ा सा सतर्क होगी कि मेरी आयु इतनी है, मुझे इस विषय में दिलचस्पी है और मेरी ठीक जिज्ञासा ये है। यदि आप कह देंगे तो हमारे विशेषज्ञ को निश्चित रूप से सुविधा होगी। आइए कुछ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत के भावी विकास में सहकारी समितियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सहकारिता केवल एक मॉडल नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की नींव है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सहकारी समितियां एक विचार से एक आंदोलन में बदल गईं, जिसने क्रांति का रूप लिया और इस क्रांति से देश का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सहकार से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे, फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया है। भारत मंडपम में आयोजित 6 दिवसीय सम्मेलन में अनेक कार्यक्रम और विचार गोष्ठियां आयोजित की हैं। इस आयोजन में देश विदेश के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। और इस बीच हमारे साथ राजस्थान से आज जुड़े हैं हरावत सिंह जी। हरावत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं, सवाल पूछिए। ये जो अपने आज है ना, ये 9:30 बजे जो पब्लिक स्पीच में है ना, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जी जी, तो उसमें ये मतलब डिजिटल प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसको खुद को जाने की जरूरत नहीं, डाक वो उससे ही चला जाएगा क्या है? आपका सवाल जरा एक बार फिर से स्पष्ट करें। डिजिटल
देखो, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। हाँ, तो आज वो 9:30 बजे पब्लिक। आप, हमारा सुझाव होगा कि आप इस कार्यक्रम को शाम में सुने, रात के 9:30 बजे, और विस्तार से आपको चर्चा दी जाएगी इस कार्यक्रम में। उसमें यदि आपके जो भी सवाल बनते हैं तो हमारे अगले कार्यक्रम में उससे संबंधित यदि नई जानकारी पूछनी हो तो अवश्य पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खबरों का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत परिवर्तनकारी बदलाव के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है। इसलिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय बैंक के अनुसार यूपीआई की क्षमताओं में सुधार के साथ अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से 16 अरब 60 करोड़ लेन देन किया गया। इसमें 86% तक भुगतान की तत्काल सफल वापसी भी है। And we have our next caller calling in from Delhi. We have Keshav joining in. Keshav, welcome to Market Mantra. Please ask your question. केशव जी, आप जुड़ चुके हैं हमसे, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे फादर सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो उन्होंने लगभग सारी अपनी जो जमा पूंजी है अपनी एफडी में लगा रखी है जी। तो एक कम से कम नहीं तो ये 32 लाख के आसपास होगी, एक ही बैंक में है। तो अभी हम पीछे टाइम आपका प्रोग्राम सुना था, आप बता रहे कि एक में नहीं रखनी चाहिए और इसको डिवाइड करके रखना चाहिए। और वैसे भी आपके द्वारा जानकारी मिली कि एक बैंक में 5 लाख की सिक्योरिटी है, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 5 लाख की आपको गारंटी है, अगर कोई कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है। हिंदुस्तान में तो ऐसी दिक्कत आने की हमें उम्मीद भी नहीं है। तो ये बताइए, इसको हम ठीक कहाँ की जगह लगाने का सुझाव देंगे? क्योंकि अभी मेरा ब्रदर है, उसकी एज 27 है, तो क्या हम किस चीज में लगाएं या इसके बारे में बताएं, या गोल्ड खरीद लें? जी केशव जी, आप समझना चाह रहे हैं कि भाई एक ही बैंक में 32 लाख रुपए की एफडी रखना क्या सुरक्षित है या नहीं है। आमतौर पर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत है और किसी एक बैंक में आपने ये सारा पैसा रखा हुआ भी है तो भी मतलब आज की स्थितियां जो हैं उसमें शक शुबा नहीं लगता है। अगर आपने किसी भी फ्रंटलाइन बैंक में रखा हुआ है पैसा, कई बार हमें कुछ खबरें कोऑपरेटिव बैंक्स को सुनने के लिए मिलती हैं या ग्रामीण बैंक या रूरल बैंक, जहां पर थोड़ी सी कई बार बुनियाद कमज़ोर होती है और उस संदर्भ में आरबीआई की ओर से अक्सर कदम उठाए भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी बड़े कमर्शियल बैंक में ये पैसा रखा है तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो 5 लाख रुपए की सीमा वाली आपकी जानकारी आपको पिछले कार्यक्रम में भी मिली है, वो जानकारी बिल्कुल सही है कि किसी भी स्थिति में यदि कोई ऊंच नीच होती है तो जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है। यानी चाहे खाते में कितने भी पैसे हों, 5 लाख रुपए आपको वापस जरूर मिलेंगे। ये एक तरह की बीमा वाली गारंटी होती है। तो 5 लाख वाली जानकारी सही है और अगर उस हिसाब से आप अपने पैसे को अलग अलग बैंकों में बांट कर रखना चाहें तो उसमें भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, वो आप करना चाहें तो जरूर कीजिए। राजीव जी, यहाँ पर एक छोटा सा स्पष्टीकरण कि यदि मान लीजिए किसी के पास 30 लाख रुपए हैं और यदि हम उनकी आयु का भी ध्यान रखें तो अपना निवेश क्या 30 लाख का 30 लाख बैंक में ही रखना सुरक्षित तो निश्चित रूप से है। लेकिन यदि जरा सा जोखिम लेने के उठा सकने के हों यदि हमारे श्रोता, तो उन्हें अपने उस धन को कहाँ मतलब किस किस सेक्टर में बांट कर लगाना चाहिए ताकि एक डूबा तो दूसरा उसको उबार ले। जी मनोज जी, आप जो पूछ रहे हैं वो एसेट एलोकेशन का प्रश्न जी 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 बिल्कुल वही। और एसेट एलोकेशन को केशव जी ने अपने प्रश्न में थोड़ा सा रखा था लेकिन मैंने उसे अवॉइड किया, लेकिन आप उसे विस्तार दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सिर्फ समय के हिसाब से सोचा था। एसेट एलोकेशन एक अलग चीज़ है, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए और हर व्यक्ति के लिए उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन बदलता जाएगा। बिल्कुल, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप कम जोखिम वाले एसेट्स में, एसेट्स का यहाँ पर मतलब है एक तरह की एसेट हो गई, जैसे बैंक एफडी का सवाल पूछा केशव जी ने, एक तरह की एसेट हो गई शेयर बाजार में आपने पैसा लगाया, एक तरह की एसेट हो गई आपने सोने में पैसा लगा रखा है, एक तरह की एसेट हो गई आपके पास अपना घर है, मकान है, जमीन है, इस तरह की चीजें। तो एक एसेट एलोकेशन यानी अलग अलग टोकरियों में आपके अंडे रखे होने चाहिए, एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं होने चाहिए। ये एसेट एलोकेशन का बुनियादी सिद्धांत है। Absolutely. And before we move forward to our next stories and our callers who are online,
there is an important announcement for all the listeners of Akashvani. In our bilingual live phone-in program, Public Speak, at 9:30 p.m. tonight, we will bring an insightful discussion on digital life certificates with Dhrubajyoti Sengupta, Joint Secretary, Department of Pension and Pensioners Welfare, R. Vishweshwaran, MD and CEO, India Post Payments Bank, and Gursharan Rai Bansal, CGM and Chief Sales Marketing Officer at India Post Payments Bank. During the program, listeners will have the opportunity to pose questions to our experts regarding significance, eligibility, and other technical aspects of the digital life certificates. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2342-1050 and 011-2331-4444. 9:30 p.m. onwards today. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044. I'll repeat the number for WhatsApp queries, 9289094044, and post your questions on X with the hashtag AskAIR. श्रोताओं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप बड़ी निष्ठा से आकाशवाणी के कह लें कि सुनने वाले हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे इस कार्यक्रम में आपके कई श्रोताओं के मन में जो सवाल थे उनका समाधान किया जाएगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की बिकवाली से हांगकांग का हिंगसेंग सूचकांक 0.41% घाटे में चला गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.11% की गिरावट हुई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ। इस बीच निवेशकों की खरीदारी से दक्षिण कोरिया के कोस्पी को 1.3% का उछाल मिला। वहीं जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.2% की वृद्धि हुई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चले तो वहां से भी मिला जुला रुख ही दिख रहा था, समाचार तैयार किए जाने तक। जर्मनी के डेक्स में 0.2% और लंदन के FTSE 100 में 0.1% की वृद्धि थी। वहीं फ्रांस का CAC 40 ऊपर नीचे जा रहा था और खबर लिखे जाने तक बिना किसी उतार चढ़ाव के पूर्व स्तर पर टिका हुआ था। Oil prices edged lower today, retreating from gains experienced last week. Brent crude was trading over 0.1% down at $75.03 per barrel, and WTI crude had lost 0.3% to trade at $71.02 per barrel when reports last came in. सर्राफा बाजार पर नजर डालें तो सर्राफा बाजार में सोना अंतिम समाचार मिलने तक थोड़ा नरमी में था। सोने का भाव समाचार तैयार किए जाने तक 24 कैरेट सोना का 1% नीचे आकर 77,280 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1.6% नीचे आकर 89,730 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति वाला सोना 0.92% नीचे 76,899 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दिसंबर की आपूर्ति वाली चांदी भी 1.62% नीचे ही चल रही थी, 89,296 रुपए प्रति किलो पर। बहुत संक्षेप में शेयर बाजार में लगातार 2 सत्रों से जो तेजी जारी है उसके पीछे क्या मुख्य कारक और कल के क्या आसार, संक्षेप में? मुख्य रूप से तो कारण है जो अचानक राजनीतिक माहौल बदला है, उसका एक सीधा सीधा असर हमें देखने को मिल रहा है। राजनीतिक स्थिरता बाजार के लिए बहुत ही एक सकारात्मक पॉइंट होता है, और यदि बाजार को ये लग रहा है कि राजनीतिक स्थिरता केंद्र के स्तर पर इन चुनावी नतीजों से बढ़ी है तो बाजार उस हिसाब से रेस्पॉन्ड कर रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों बाजार में ऊपरी स्तरों से काफी गिरावट आ गई थी, तो बाजार वैसे भी एक टेक्निकल बाउंस के लिए तैयार था, और वैसे में ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला ट्रिगर आया है उसने अपना योगदान किया है। श्रोताओं की ओर से राजीव जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices extend gains to second consecutive session. Sensex reclaims 80,000 level. Nifty ends above 24,200. Food inflation is expected to calm down next few months on the likelihood of bumper Kharif harvest, says Finance Ministry in its monthly economic review. And crude oil prices slip. Brent crude trades at $75.03 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar. Market Mantra.